یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ تیمور کے خدشات حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ جہاز نے ایک آخری جھٹکا کھایا۔ موسم انتہائی خراب تھا اور اس فلائٹ میں مسافروں کی تعداد بھی خاصی کم تھی۔ یہ جہاز کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ تیمور نے ماسک اتارتے ہوئے ساتھ بیٹھے عمران کو خبردار کیا، خود کو تیار رکھو اور بلال کو بھی بتا دو۔ پھر تینوں نے فوراً اپنی سیٹ پر جھک کر سر گھٹنوں میں دے دیا۔ یہ وہی پوزیشن تھی جو انہیں سکھائی گئی تھی، تاکہ کریش لینڈنگ کی صورت میں جھٹکا کم لگے اور بچنے کا امکان بڑھ جائے۔ عمران اور بلال نے بھی تیمور کی تقلید کی اور منہ ہی منہ میں اللہ کا ویرد کرنے لگے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کھڑکی سے زمین دکھائی دینے لگی۔ جہاز تیزی سے نیچے بڑھ رہا تھا۔ نیچے پھیلی برف دیکھ کر تیمور کو کچھ سکون سا ہوا، کم از کم نیچے چٹانیں نہیں تھیں۔ تیار ہو جاؤ، ہم ٹکرانے والے ہیں، تیمور چیخا اور سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر یکدم ایک خوفناک جھٹکا لگا، ایسا لگا جیسے پورا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ جہاز برف پر رگڑ کھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر رک گیا۔ چند لمحے سب کچھ دھندلا سا رہا۔ جن لوگوں نے پوزیشن صحیح نہیں لی تھی وہ بری طرح زخمی ہوئے، مگر خوش قسمتی سے سب بچ گئے تھے۔ تیمور نے سانس سنبھالا اور فوراً اپنے ساتھ بیٹھے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کو ٹھیک دیکھ کر ایک گہرا سکون اس کے دل میں اترا۔ بلال، تم ٹھیک ہو؟ اس نے بلال کو پکارا۔ بلال ہانکتے ہوئے بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے سیٹ بیلٹ کھولی اور باقی مسافروں کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ جہاز کا ایک حصہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس دراڑ سے برف اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ تیمور اپنی سیٹ چھوڑ کر اس حصے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے باہر جھانکا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے ایک الگ تھلگ دنیا تھی، برفانی تودے، سنسان پہاڑ اور دور دور تک صرف سفید موت آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے۔ تیمور بیزاری سے بولا، اسے اندازہ تھا کہ اگر جلد مدد نہ پہنچی تو انہیں یہاں کئی دن تک خوار ہونا پڑے گا۔ وہ ابھی ارد گرد کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عمران اس کی طرف بڑھایا۔ بھائی، یہ ہم کدھر لینڈ ہو گئے؟ سالہ کوئی ایئرپورٹ، کوئی بلڈنگ تک نظر نہیں آ رہی۔ عمران نے باہر جھانکتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ تیمور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ باہر طوفان ہے۔ ابھی ذرا دھوپ نکلے گی تو باہر کھڑے فروٹ والے سے مالٹے لیں گے اور دھوپ میں بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے۔ تیمور کے جلے کٹے انداز پر عمران کی ہنسی نکل گئی۔ شکر کر جان بچ گئی، ورنہ جہاز گرے اور بندہ بچے، ایسا کم ہی دیکھنے اور سننے کو ملا ہے۔ عمران نے کان کے قریب سرگوشی کی تو تیمور نے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ جو وقت گزر رہا ہے، ہم الفا 1 اور اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم یہ مشن مکمل کر پائیں گے۔ نہیں دوست، ایسا مت سوچ، عمران نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ نا امیدی تو گناہ ہے اور ہمارے لیے تو گالی۔ اللہ پر بھروسہ رکھ، انشاءاللہ جلد ہی کوئی راستہ نکل آئے گا۔ عمران کی تسلی نے ماحول کو کچھ پرسکون کیا۔ اتنی دیر میں بلال بھی قریب آ گیا اور بولا، تقریباً سب لوگ ٹھیک ہیں، بس ایک دو کو چوٹیں آئی ہیں، لیکن جتنا زیادہ وقت یہاں لگا مشکل اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ یہ سنتے ہی تینوں رخ موڑ کر زخمی لوگوں کی طرف بڑھ گئے۔
जहाज सामने मौजूद था, मगर तूफान की शिद्दत अल्फा की राह में एक दीवार बनी हुई थी। उसे अंदाजा था कि वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अचानक इसने कुछ सोचकर बैग खोला और सैटेलाइट फोन निकाला, मगर ये देखकर मायूसी हुई कि सिग्नल बिल्कुल गायब थे। अल्फा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो दूर धुंध में एक ऊंचा सा टीला दिखाई दिया। वो बैग उठाकर उस तरफ बढ़ गया। टीले पर पहुंचने में उसे खासी मशक्कत करना पड़ी। ऊपर सख्त बर्फानी हवाएं इस पर चाबुक की तरह बरस रही थीं, लेकिन उसने परवाह ना की। फोन ऊपर करते ही अचानक सिग्नल आ गए और अल्फा ने फौरन एसओएस कॉल मिला दी। कॉल जल्द ही अटेंड कर ली गई और अल्फा ने पूरा वाकया तफसील से सुना दिया। लोकेशन पूछी गई तो उसने रहनुमाई कर दी। सब रास्ते उसे याद थे, कहां से जहाज गुजरा और कहां क्रैश हुआ। ये काम खत्म होते ही वो टीले से नीचे उतरा और जहाज की समत तेज कदमों से चल पड़ा। पता नहीं कौन बदकिस्मत होंगे जो इस मौसम में यहाँ आ गिरे। अल्लाह करे सब बच गए हों, वरना ऐसे क्रैश में जिंदा बचना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र इस बात का था कि हादिसा इसकी नज़रों के सामने हुआ। अगर ना देखता तो रेस्क्यू टीमों को जहाज ढूंढने में कई दिन लग जाते। चलते चलते आखिर वो जहाज के करीब पहुंच गया। उसे ढांचा वाज़ेह नज़र आ रहा था। एक तरफ से बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गया था और कुछ मलबा बाहर बिखरा पड़ा था। वो धीरे कदमों से जहाज के गर्द घूमने लगा, फिर इस टूटे हुए हिस्से की तरफ आया और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर न आया। अल्फा ने आसपास नजरें दौड़ाईं। करीब ही जहाज का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। वो उसे घसीट कर लाया ताकि सीढ़ी या तख्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये टुकड़ा भारी था, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो गया। वो अभी ऊपर चढ़ने ही वाला था कि उसे ऊपर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने सर उठाया। सामने एक शख्स खड़ा था, मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए। वो सीधा अल्फा को देख रहा था। अल्फा ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जवाब में उस शख्स ने भी हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा। अल्फा वहीं बर्फ पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि सामने वाला क्या करता है। कुछ लम्हे गुजरे, फिर दो और अफराद उस शख्स के साथ दिखाई दिए। सबने चेहरों को गर्म मफलर से ढांपा हुआ था। अल्फा ज़ेर लब बड़बड़ाया, किस मकसद के लिए निकला था और अब कहाँ उलझ गया हूँ। वक्त यहाँ ज़ाया हुआ तो मेरा मिशन पीछे रह जाएगा। तैमूर की बेचैनी लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। वो उठा और जहाज के टूटे हिस्से की तरफ बढ़ा। एयर होस्टिस ने सख्त लहजे में कहा, सर, अपनी सीट पर बैठ जाएं। लेकिन तैमूर कब सुनने वाला था। उसने बात सुनी अनसुनी की और नीचे झांका। धुंध और बर्फ के बीच एक साया हरकत करता दिखाई दिया। कोई शख्स था जिसने अपना चेहरा मफलर से मुकम्मल छुपा रखा था और वो जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तैमूर ने हाथ से इशारा किया तो नीचे मौजूद शख्स ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, फिर खामोशी से पीछे हट गया। तैमूर तेजी से पलटा और इमरान और बिलाल को मुखातिब किया, दोस्तों, नीचे कोई है। लगता है कोई मकामी आदमी है। इसका मतलब है कि हम किसी बर्फानी आबादी के करीब हैं। ये सुनते ही इमरान और बिलाल एकदम खड़े हो गए और उसके साथ जहाज के टूटे हिस्से की जानिब दौड़ पड़े। एयर होस्टिस ने एक बार फिर रोकने की नाकाम कोशिश की, मगर वो तीनों किसी के काबू में आने वाले नहीं थे। वहां पहुंचकर सबने नीचे झांका। वही शख्स बर्फ पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। तैमूर ने आगे बढ़कर जहाज के साथ लगे तख्ते पर पांव रखा और स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया। वो गिरने ही वाला था कि नीचे मौजूद शख्स ने बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। थैंक यू दोस्त, तैमूर ने सांस संभालते हुए कहा, मगर अगले ही लम्हे वो चौंक उठा। सामने वाले ने फौरन तैमूर के चेहरे पर मौजूद मफलर को खींचकर उतार दिया।
तो तैमूर को खतरे की बू आई। ऊपर मौजूद इमरान और बिलाल ने भी ये मंजर देखा तो फौरन तख्ते पर फिसलते हुए नीचे आ गिरे और आगे बढ़कर इस अजनबी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर सब अचानक रुक गए। अजनबी ने अपना मफलर हटाया और इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। तैमूर के लबों से बस इतना ही निकला, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान था। मैं तो अपने काम से निकला था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुल्तान ने मशकूक लहजे में कहा। तैमूर आगे बढ़ा और उसे बाजुओं में भर लिया। तेरी तलाश में ख्वार हो रहे थे कि जहाज क्रैश हो गया, और अब सोच हमने तेरी मनहूस शक्ल यहाँ देख ली। सुल्तान ने भी कहकहा लगाते हुए तैमूर को गले लगा लिया। इमरान हंसते हुए आगे बढ़ा और मफलर उतारते हुए बोला, भाई हम भी तो यहाँ मौजूद हैं, हमें भी शर्फ बख्श दो झपी डालने का। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। ओह, यानी कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। सुल्तान ने सवालिया अंदाज में तीनों को देखा तो वो सब हंस पड़े। बिलाल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, कमांडर को हमने साफ साफ बता दिया था कि तुझे लेने जा रहे हैं, वो हमें रोक ही नहीं सका। सुल्तान एक लम्हे को लाजवाब सा हो गया और फिर धीमी आवाज में बोला, वैसे मैं इमरजेंसी को कॉल कर चुका हूँ, बस वो लोग किसी भी वक्त पहुँचने वाले हैं। मैंने इन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन भेज दी है। अब बेहतर है कि तुम सब जल्दी निकल लो, वरना इंक्वायरी और बाकी झंझटों में वक्त ज़ाया हो जाएगा। तैमूर ने हैरत से पूछा, लेकिन तू इस वीराने में कर क्या रहा है? तेरी यहाँ मौजूदगी तो मुझे किसी सूरत हजम नहीं हो रही। सुल्तान ने कहकहा लगाया और बोला, ओ भाई, ये रास्ता सीधा उनके खुफिया ठिकाने की तरफ जाता है। मैं तो उधर ही जा रहा था कि एक जहाज नजर आया और फिर वो आकर यहीं गिर गया। करीब आकर देखा तो इस अंडे में से तुम 3 चूजे बरामद हुए। ये सुन कर तीनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। सोचो, अगर हम एयरपोर्ट पहुंचते और फिर यहाँ का रुख करते तो कितना वक्त ज़ाया हो जाना था। सुल्तान ने इसके शाने पर हाथ रखा और सर झुका कर बोला, या रब, तेरी आस ही सब कुछ है। बेशक मेरे दोस्त, अल्लाह के हर काम में मसलहत छुपी होती है। ये कहकर उसने आगे बढ़ने का इशारा दिया। तीनों दोस्त सुल्तान के साथ बर्फानी तूफान में कदम ब कदम चल पड़े। जहाज के टूटे हिस्से में खड़ी एयर होस्टेस हैरत से इन्हें जाता देखती रह गई, यहाँ तक कि वो सब बर्फ के तूफान में गुम हो गए। डैनियल डेविड के कमरे में मौजूद था। वो उसे गहरी सोच में डूबा देख रहा था। डेविड बहुत कम ही ऐसी कैफियत में नजर आता था, क्योंकि इसमें बला का हौसला था। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो पुरसुकून रहता था। डैनियल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ चीफ, सब ठीक तो है ना? डेविड चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। बाहर बर्फानी तूफान जोरों पर था, लेकिन कमरे के अंदर आतिशदान की जलती आग ने खुशगवार हिद्दत फैला रखी थी, वरना बाहर तो खून जमा देने वाली हवा दीवारों और खिड़कियों से टकराकर खौफनाक शोर बरपा कर रही थी। डेविड ने धीमी आवाज में कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन इस लड़की की बातें मुझे अजीब लगती हैं। जितना पुरसुकून वो बैठी है, लगता है जैसे अल्फा 1 ज़रूर आकर उसे छुड़ा ले जाएगा। तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही वो इस इलाके में दाखिल हो, हमें फ़ौरन खबर हो जाए। डैनियल ने एतमाद से जवाब दिया, यस चीफ, हमने अपनी हुदूद के आगाज़ पर ही आलात नस्ब कर रखे हैं। जैसे ही कोई अजनबी यहाँ कदम रखेगा, हमें इत्तला मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहें। ये सुनते ही डेविड के माथे पर फैली शिकनें कुछ कम हो गईं। वो मुस्कुराते हुए बोला,
वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है, और अगर कोई मौसम के तेवरों को झेल कर आ भी गया तो हम उसका शिकार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद डेविड ने डैनियल को रुखसत कर दिया। डैनियल अपने कमरे में जाने की बजाय उस छोटे कंट्रोल रूम में दाखिल हो गया, जहां एहलकार मशीनों पर नजरें जमाए बैठे थे। डेविड ने सख्त लहजे में हिदायत दी, याद रखो, खतरा किसी भी वक्त दरवाज़ा खटखटा सकता है। आंखें खुली रखो और खबरदार, मुझे इत्तला दिए बगैर कोई एक्शन ना लेना। ये कहकर वो वापस अपने कमरे की खिड़की पर आया और उस टावर की तरफ देखने लगा जहां इनाया को कैद रखा गया था। दूर से वो टावर बिल्कुल किसी कैद खाने की मानिंद लग रहा था। ऊपर खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उस रोशनी का मतलब था कि इनाया अभी तक जाग रही है। डेविड के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट लौट आई। वो खिड़की से हटते हुए बड़बड़ाया, बस बेबी, कुछ दिन और, फिर तुम हर किस्म की कैद से आज़ाद हो जाओगी। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।